A very good afternoon to everyone present here. Today, we have with us the most prominent and renowned personality, Sri Atul Krishna Das, who is a proud member of ISKCON Greater Noida and working as a president ISKCON Greater Noida. With his preaching, he is not only educating the masses but also transforming their lives. It's a fact that today we are living in technical era which has created a bridge between our technical and spiritual life. We are getting far away from our ethics and values, thus making ourselves inhuman. But I assure you that after listening to our distinguished guests, you all will be happy and satisfied. Now, request to Dr. Gaurav Sinha to kindly welcome the guest. Over to Gaurav, sir. Thank you, Anand sir. Uh, First of all, Pranam Guruji. A very good morning to one and all. Honorable guest Guruji Atul Krishna Das ji, Dr. AP Singh ji, and dear students. It's a great pleasure and privilege for me today to welcome and introduce today's guest speaker, Guruji Shri Atul Krishna Das ji, who is the president of ISKCON Greater Noida. We are really thankful to him for taking time out of his busy schedule to deliver lecture on such an extremely good topic, that is technological innovation greatly influencing human values and ethics for our students and faculty members. Guru Shri Atul Krishna Das ji is a very dynamic and talented person, and the presence of such a personality in this webinar is a blessing for all of us. I hope that the students are able to seek little guidance and imbibe something from his thoughts. With these words, I once again welcome our our guest, Guruji Shri Atul Krishna Das ji, who is an inspiration to all students and to all of us. Thank you all. Over to Anand sir. Thank you, sir. Now, before I invite our today's guest, I will read the brief biography of Guruji. His Grace Atul Krishna Das was born in Delhi and completed his education from Mumbai University. After completing his education, he decided to dedicate his life for humanity and joined ISKCON in Mumbai. Since then, he is associated ISKCON. He also gives seminars on topic like mind control, successful teaching skills, life after death, concentration and memory power, etc. He has visited many countries like Kenya, Uganda, Botswana, South Africa, Bahrain, etc. to deliver seminars as a service to Lord Krishna and humanity at large. Now, on behalf of IMT family, I welcome him and invite him to enlighten us with his knowledge. So, over to Guruji. Very, very grateful to all of you. And we have a practice that before we begin, we chant some mantras just to bring auspiciousness to the whole environment. And I'm sure none of you will understand, most of you, I'm sorry, will not understand the words of this mantra. But I request all of you just to pay attention, and then we will begin the session today. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram.
I'm very, very grateful to the management of IIMT for allowing us, inviting us to speak something on a very interesting topic, that how the technological development which we have done, how the innovative technology or the innovations in the technology are influencing human values and ethics. And especially thankful to the management because they thought that for the students' development, overall development, there is one important factor which generally is missed, and that is the spiritual quotient. We talk about intelligent quotient, IQ, we talk about emotional quotient, EQ, but we hardly speak about spiritual quotient. And the scientists have proved in the beginning of this 2000, this century, that unless all three are there, IQ, EQ, and SQ, that is the part of the spiritual quotient is also there, the personality is not complete. So I'm very grateful that your management of IIMT thought that let us give the student a complete benefit, and that is why they are including this spiritual values, human values and ethics in their um, presentation. And though we have 1 hour of presentation, but I will try to give you briefly whatever is possible to discuss on human values and ethics. Is a very very large subject, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको थोड़े समय में इन चीज़ों को समझाने का कि किस तरह ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए टेक्नोलॉजी से दूर जाना संभव नहीं है. वी कैनॉट गिव अप टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर. तो टेक्नोलॉजी रहते हुए हमें अपनी वैल्यूज कैसे बनाए रखनी है, ये बहुत जरूरी है सीखना. तो I will try to speak something on that. When we talk about technological innovation, so we know from time immemorial, human beings have been trying to make their life easy and worth living through invention of various gadgets. हम लोग बहुत कुछ बनाते हैं जिससे हम अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, जैसे मोबाइल बनाए या अन्य गैजेट्स बनाए, कंप्यूटर्स बने, लैपटॉप्स बने, टैबलेट्स बनी, तो जिससे हमारा जो लाइफ है वो बहुत इजी हो सके. ये एक उद्देश्य होता है टेक्नोलॉजी का. तो टेक्नोलॉजी, लेकिन किस तरह से हम यूज करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. वैसे अगर आज हम देखें, if we see today's world, we have come far far ahead. अगर ऐसा हो सके कि 1900 में से, अभी वी आर ऑन 2020, तो 1900 के किसी व्यक्ति को आज के समय में अगर हम लोग इस समय ट्रांसपोर्ट कर सकें, कभी कभी मूवीज में दिखाते हैं ना कि वो आगे चले गए, पीछे चले गए समय में. सो लेट्स से स्पेस मशीन में वी कैन ट्रांसपोर्ट एंड ब्रिंग देम हियर. तो वो लोग देखकर इतना आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कितनी प्रगति कर ली है. they have researched, they have found so many things. पहले तो लोगों को पता नहीं था शरीर में क्या होता है, लेकिन फिर अब ये पता चलने लगा. या फिर बहुत सारे मॉडर्न इन्वेंशन, अभी फोन ही को ले लीजिए, कितना महत्वपूर्ण है. कहीं पर भी बैठकर, इस समय भी हम लोग अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं लेकिन आराम से बातचीत कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स विल बी अमेजिंग फॉर अ पर्सन फ्रॉम 1900. तो ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं. बट इन डेवलपमेंट्स में जो डिस्कवरीज हुई हैं, हमारे कई वैज्ञानिकों ने एक बड़ी चेतावनी दी है. ऐसे तो वैज्ञानिक बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट करते हैं,
लेकिन साथ ही साथ वो एक चेतावनी भी देते हैं। जैसे नोबेल प्राइज विनर हैं, रॉयल सोसाइटी प्रेसिडेंट हैं सर वेंकी रामकृष्णन। तो उन्होंने एक एस्से लिखा है बीबीसी के लिए और साइंटिफिक कवरीज पर। तो उन्होंने कहा है कि यस, बहुत अच्छा हुआ है, सब है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करें। तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक चाकू की तरह है। उसका इस्तेमाल उसे अच्छा और बुरा बनाता है। टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज नॉट गुड, नॉट बैड। हाउ यू यूज इट, दैट मेक्स इट गुड एंड बैड। जैसे एक चाकू किसी मर्डर के हाथ में होता है तो वो किसी की जान ले लेता है, और वही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में होता है तो वो जान बचा लेता है। चाकू वही है, यूज करने वाला और यूज उसका जो प्रॉपर यूज हो रहा है उसके अनुसार वो अच्छा या बुरा माना जाता है। Similarly, the technological innovations, they are not good, they are not bad. It's the use, how you use it makes them good or bad. तो इसीलिए जो साइंस की डिस्कवरीज हैं, इनमें हमें बहुत संभालना चाहिए। इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स ये साथ साथ चलने चाहिए। So we need to go on developing technological innovations, but at the same time we need to go on progressing in on human values. And how do we know what are the human values? कैसे पता चले कि क्या हमें करना है? क्योंकि इतना सब बम्बार्डमेंट हो रहा है। आप में से कितने लोग फोन के बिना रह सकते हैं 24 घंटे? बहुत कम। दरअसल ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी सोसाइटी बनाती है या सोसाइटी टेक्नोलॉजी बनाती है। ये हम कंफ्यूज हो गए हैं आज के समय में। वी आर कंफ्यूज वेदर टेक्नोलॉजी शेप्स सोसाइटी और सोसाइटी शेप्स टेक्नोलॉजी। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन शुड आस्क। टेक्नोलॉजी बनी है हमें अच्छी तरह से रहने के लिए, देने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं बनी कि हम उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए। तो जो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दैट इज ऑन वेरियस लेवल। इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी लाइफ, इम्पैक्ट ऑन वर्क, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। आप देखिए टेक्नोलॉजी हर जगह है। तो कैसे होना चाहिए? कम्युनिटी लाइफ में होता है, जैसे हम आपसे पूछ रहे थे कि कितने लोग आप लोग 24 घंटे एक फोन के बिना सरवाइव कर सकते हैं। हम सबको इतनी आदत पड़ गई है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। कुछ समय पहले हम कहीं पर जा रहे थे तो कुछ उस क्षेत्र में, कुछ एरिया में कुछ गड़बड़ चल रही थी। आई थिंक वो अयोध्या का वर्डिक्ट आने वाला था। तो उस समय मोबाइल्स बंद कर दिए गए थे उस एरिया में, हम जहाँ पर थे। तो कोई आपके पास मोबाइल है लेकिन कोई कनेक्शन ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है। तो उस समय हमने देखा कि कई जो हमारे, हमें तो बहुत खुशी हुई, हम तो बड़े आराम से थे, लेकिन कई लोग हमारे साथ बड़े परेशान हो रहे थे। अरे मेरा फोन नहीं चल रहा है, मैसेज नहीं आ रहे हैं, अरे मैं किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। तो आप जानते हैं कि जो लोग हैं, 25% of people use technology more than 12 hours a day। दिन में 12 घंटे से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एंड 4 days of the week, which is around 48 hours of your week, about 6 out of 10 people have a device। मतलब हम लोग इतना ज्यादा डिपेंड हैं टेक्नोलॉजी पर कि हम उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो हमें जानना चाहिए कि जो इम्पैक्ट है कम्युनिटी लाइफ पर वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ऑफ कोर्स कुछ अच्छी चीजें हैं। इट हैज इम्प्रूव ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट हैज क्रिएटेड मोबिलिटी। हम सबके लिए बहुत अच्छा भी चीजें किया है। ये भी कहीं से भी, जैसे लॉकडाउन के समय पीपल कुड वर्क फ्रॉम होम। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी भी हुई हैं।
मगर जैसे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, सोशल मीडिया से बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन साथ साथ एक कॉशन भी है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हेल्थ पर क्या हो रहा है? एक तरफ देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हो रहा है, टाइम बहुत बचता है, वेरी गुड, और मेडिकली भी बड़ी प्रोग्रेस हो जाती है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन साथ साथ वी नीड टू नो ये जो मोबाइल का इफेक्ट है, अन्य गैजेट्स का इफेक्ट है, वो धीरे 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 हमारे हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन। आपको पता है अभी जैसे पहले डी एडिक्शन सेंटर बनाए जाते थे जिसमें लोगों को शराब छोड़ने के लिए किसी तरह प्रेरित किया जाता था, अब इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर बन गए, क्योंकि लोग इतने एडिक्टेड हैं कि वो इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते। हमें ध्यान है जब पहली बार लॉकडाउन हुआ मार्च में, और उसके बाद आ रहा था कि फिर से एक्सटेंड होगा और 20 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, तो किसी ने मैसेजेस भेजे थे हमें। एक मैसेज उसमें था कि उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप चाहिए तो और 3 महीना लॉकडाउन कीजिए, लेकिन बस इंटरनेट ऑन रखिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑन रखिए, कुछ नहीं चाहिए और। लोग इतने डिपेंडेड हैं इन चीजों पर, और इसके कारण हेल्थ का इफेक्ट खास करके स्टूडेंट लाइफ में ये जो मोबाइल या ये जो टीवी, ये जो चैनल्स, 200 चैनल, 300 चैनल चल रहे हैं, इन सब का इफेक्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट लाइफ पे? सबसे पहला इफेक्ट, स्टूडेंट्स ने रात को पढ़ने की जगह मोबाइल से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले स्टूडेंट्स रात रात को पढ़ा करते थे, लेकिन अब मोबाइल यूज करते हैं, और आप सब जानते हैं कि रात को मोबाइल पे वो क्या करते हैं। एंड उसके अलावा जो फोकस करने की उनकी पावर है वो कम हो रही है, विच दे आर नॉट रियलाइजिंग। एज स्टूडेंट्स आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आपकी जो फोकस करने की पावर है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि व्हाट डू यू डू ऑन मोबाइल? You keep shifting, you keep surfing. Sometimes you go on Facebook, then you come to WhatsApp, then you come to Twitter, then you come to some other place, maybe Telegram, and आप shift करते रहते हो। So mind को एक जगह फोकस होने का जो पावर है, जो हैबिट है, वो नहीं हो रहा है। और वही चीज स्टडीज में आती है। आप स्टडी पे फोकस करने जाते हो, माइंड करने नहीं देता। आप सोचिए, हम लोग 3 दिन का सेमिनार हम लोगों को आजकल करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग ये सिखाते हैं कि कैसे फोकस करना चाहिए, कैसे मेमोरी पावर बढ़ानी चाहिए। वी हैव टू डू इट बिकॉज स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर कम हो रही है। वो इतना पढ़ते लेकिन एग्जाम में जाते सब खत्म। बैठकर पढ़ने का प्रयास करते, 4 पेज पीछे क्या पढ़ा कुछ पता नहीं चलता है, फोकस नहीं होता है। फोकस स्टडी कैसे होनी चाहिए, मेमोरी पावर कैसे बढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे जैसे अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है, हम डिपेंडेड हो गए हैं। आजकल हमें अपने नंबर्स तक याद नहीं रहते हैं। आपसे कोई आपका नंबर पूछे, आप मोबाइल पर जाते और बोलते हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, क्योंकि याद नहीं रहता है। या 1-2 नंबर याद है, पहले हर एक के नंबर याद थे। तो देखिए हमारी मेमोरी पावर कम हो रही है, हमारा फोकस कम हो रहा है, विशेष करके स्टूडेंट्स के लिए। बाकी लोगों के लिए तो बहुत हेल्थ के इश्यूज हैं। तो इसका कारण क्या है? हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, साथ साथ हमने ह्यूमन वैल्यूज को छोड़ दिया है। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज का अर्थ क्या है? वैल्यूज विच आर एट द कोर ऑफ बीइंग ह्यूमन, अर्थात वो वैल्यूज जो आपको ह्यूमन बनाती हैं, उसे ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। उसके बिना आपको ह्यूमन कहना सही नहीं। तो जो बेसिक वैल्यू हैं उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, एंड वी शुड नो दैट दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन definitely is influencing our human values, and we are not understanding the importance of human values. हमारे मन में क्या आ रहा है
जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर गोइंग इन द स्कूल एंड कॉलेज अर्लियर, हमारे लिए टीचर्स वर्शिपेबल होते थे। हम सोचते थे कि टीचर्स सबसे अच्छा हमें बता सकते हैं। वैसे ये सच है, शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की पूजा करनी चाहिए। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु की पूजा होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमारी वो ह्यूमन वैल्यूज चली गई हैं। हम स्कूल कॉलेज में जाकर टीचर्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें लगता है कि हम सब गूगल से पता कर लेंगे, हमें सब नॉलेज हो गई है। बट दिस इज, ये केवल इल्यूजन है। बिना टीचर के, बिना शिक्षक के हम प्रगति नहीं कर सकते आज भी, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी। क्योंकि इंटरनेट पर भी लिखने के लिए कोई टीचर तो चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख देगा तो क्या हम उसको स्वीकार कर लेंगे? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो वी शुड नो इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू क्या है। इट प्रोवाइड्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटीट्यूड, द मोटिवेशन एंड बिहेवियर। What is important in our life? In our life, important is attitude, motivation, and behavior. If you don't have a proper attitude, you go into depression. If you don't have a motivation to do anything, you give it up. And if your behavior is not nice, then you don't create friends. That is why it is the human values, they provide you the understanding of these things: proper attitude, proper motivation, and proper behavior. It also influences our perception of the world around us. हमारी ह्यूमन वैल्यूज हम कैसे दुनिया को देख रहे हैं, इसको भी हमें समझाती हैं। और ये बहुत जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है, इतना ज्यादा एडवांसमेंट है, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन दुनिया को आप फिगर देखना चाहें तो आप देखिए, जो एडवांस कंट्रीज हैं, यूएस, जापान, सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं वहां पर। साउथ अफ्रीका 33,000 रेप केसेस इन अ ईयर। तो ये मैरिजेस दे आर ब्रेकिंग। पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में 50% मैरिजेस आर ब्रेकिंग। तो क्या हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा सही दिशा में जा रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड? झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, अनरेस्ट है, कहीं पर कोई विरोध हो रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, वॉर्स हो रही हैं। तो क्या हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा अपने जीवन में शांति तक लाने का प्रयास नहीं किया? फिर कैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट? सो लुक अराउंड योरसेल्फ। अब केवल ये कहने से कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया मुट्ठी में नहीं होती। एक कंपनी ने स्लोगन दे दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी। एक मोबाइल से, कोई टेक्नोलॉजी से दुनिया मुट्ठी में नहीं होती। दुनिया मुट्ठी में किससे होती है? जब हम खुद अपनी वैल्यूज पे खड़े होते हैं। सो दुनिया को कंट्रोल करना है तो आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, और आपकी इंटरनल पावर दुनिया को कंट्रोल कर सकती है, या आप उस वर्ल्ड को उस तरह से देख सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन वैल्यूज प्रोवाइड्स यू अ वे टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। आज हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छे स्तर पर हैं, लाइक से रतन टाटा, a powerful businessman he is, and a gentleman, very respected businessman. तो क्या है ऐसा उनमें? We should study their life, what values they live by. रतन टाटा का अगर हम आपको एक उदाहरण दें, तो रतन टाटा एक, वैसे तो हम कई क्वालिटीज बोल सकते हैं, लेकिन एक क्वालिटी ह्यूमिलिटी। वो एक बार फोटो खिंचा रहे थे, हमने उनकी फोटो देखी उनके सारे एम्प्लॉयज के साथ, और वो नीचे बैठे हुए हैं जमीन पर, घुटनों पे ऐसे बैठ के खिंचा रहे हैं। दिस इज अ पर्सन, इनके लिए तो सोने की चेयर आनी चाहिए, बट ही इज वेरी हम्बल। उन्होंने ट्रैवल किया,
एक एयरलाइन में जब वो प्रारंभ हुई फर्स्ट टाइम, एयरलाइन में ट्रैवल किया, ही वेंट इन इकोनॉमी क्लास, ही डिडंट गो इन द फर्स्ट क्लास। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो इन लोगों को बहुत रिस्पेक्टेड बनाती हैं आज भी, और ये लोग टॉप पर हैं सब। रतन टाटा इज वेरी ग्रेट बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग सक्सेसफुल हैं तो इनकी कोई वैल्यूज नहीं है। इफ यू स्टडी एवरी सक्सेसफुल मैन, ही इज लिविंग बाय सम वैल्यूज, और वो वैल्यूज उसको रियल सक्सेस दिलाती है। ऐसा आना इज नॉट अ सक्सेस, लेकिन लोगों के हृदय को जीतना इज अ सक्सेस। We have so many businessmen, we don't respect them. But we have certain businessmen who are very respected, certain leaders who are very respected. We have so many leaders, we don't respect everyone. तो इसीलिए living by values is very important. आपको अपने जीवन के विषय में सोचना है। How you want to live? Do you want to live just by depending on the technology, or just by hook and crook earning some money and thinking that you are successful, or you want to live by values by which people appreciate you? आपको एक छोटा सा कहावत के बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति था गांव में, थोड़ा सा पावरफुल व्यक्ति था, तो उसका कुत्ता मरा, तो सारा गांव गया शोक मनाने के लिए कि हाय 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 क्या हो गया। और जब वो मरा, एक व्यक्ति भी नहीं गया शोक करने। क्यों? क्योंकि जब वो जीवित था तो उसने इतना प्रभाव बनाया हुआ था लोगों पर, दबा दबा कर, उनका शोषण करके, कि लोग डरते थे और डर से चले गए कि अरे इसका कुत्ता मर गया है, अगर हम नहीं जाएंगे तो तकलीफ होगी। लेकिन जब वो मर गया, किसी ने ध्यान नहीं। क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी करके, गलत काम करके, इधर उधर वैल्यूज को तोड़कर, वैल्यूज को सारा हटाकर हम कुछ ना कुछ कमा ले, ये दिखाएं कि हम सक्सेसफुल हो गए? या फिर हम रियल सक्सेस की ओर जाए? सो प्लीज अंडरस्टैंड, रियल सक्सेस इज नॉट हाउ मच यू गेन, रियल सक्सेस इज हाउ मच सैटिस्फाइड यू आर विद व्हाट यू गेन। आपके पास जो है उससे आप कितना संतुष्ट हैं। रियल सक्सेस इज हाउ मेनी पीपल्स लाइफ यू हैव इन्फ्लुएंस्ड, आपने कितने लोगों के जीवन को बदला, ये आपकी रियल सक्सेस। अपने लिए जीना स्वार्थ है। सो हाउ यू कैन कम, आपके अंदर ये पावर, ये कहां से आ सकती है? ये पावर आ सकती है जब हम थोड़ी सी स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और ये जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, ये हमें इतनी शक्ति प्रदान करती हैं कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन में सक्सेस को भी प्राप्त करेंगे। इट इज नॉट दैट वंस यू टेक अप टू स्पिरिचुअल वैल्यूज you don't have to become a successful person. Why not? We have examples of so many successful people who have taken up to spiritual life, like Alfred Ford. He's the owner of the Ford company, those who are manufacturing the cars, Ford cars. He's the owner. Alfred Ford, born in a Christian family and America, very rich family, but he has taken up to spiritual life. And Mr. Ford is very happy with the spiritual life. And at the same time, he's a successful businessman, running business all over the world. ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल लाइफ लेने से हम सक्सेस को छोड़ना है हमें। स्पिरिचुअल लाइफ मेक्स यू रियल सक्सेसफुल पर्सन। और ऐसे कई कई उदाहरण हैं। There are top models. In Italy, there is a top model. She's on most of the magazines and all. But she has taken up the spiritual life because she says the pressure which I get. आज जैसे हम बता रहे थे लॉकडाउन के समय क्या हुआ स्टूडेंट के साथ, प्रेशर नहीं ले पाए। हम खुद पर्सनली कई स्टूडेंट्स को इस समय काउंसिल कर रहे हैं
जो एक ही कमरे में रहने के कारण दे हैव लॉस्ट देयर मेंटल बैलेंस। एक स्टूडेंट को हम कर रहे हैं, उसने क्या हुआ कि वो अकेले रह रहा था और ऐसे धीरे 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 ना 2-3 दिन खाया नहीं, 4 दिन खाया नहीं, डिप्रेशन में चला गया। इट हैज अफेक्टेड हिज माइंड। तो अब हमारे संपर्क में आए हैं, वी आर ट्राइंग टू रिवाइव हिम। तो ऐसा बहुत होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं ये सोच कर के अरे अरे ऐसा। तो दिस इज ऑल बिकॉज you depended on technology but you did not develop those values, those power within you. Each of you has a power. आप सबके अंदर वो शक्ति है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। एवरी वन ऑफ यू, जस्ट उसको निकालना है। जैसे एक माचिस की डिबिया होती है, उसमें कई सारी तीलियां होती हैं और हर तीली में अग्नि होती है। बस एक सही प्रक्रिया चाहिए। We need a right process and that fire comes out. So all of you have that fire. आप सबके अंदर वो अग्नि है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप में से कोई भी ऐसा है जिसमें पावर नहीं है, जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। All of you have that fire. All of you have that power. Right process चाहिए और right process मिल जाए, फायर बाहर आ जाए। बहुत सरल। And spirituality is the right process to bring out that fire. Because spirituality, what it does to you, basic human values अगर हम देखें, अगर आप फाइंड आउट करने का प्रयास करें, तो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज में बताते राइट कंडक्ट होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। यस, दीज आर द वैल्यूज। बट ये कहाँ से आते हैं? लेट मी टेल यू, द टर्म एथिक्स refers to the system of moral behavior accepted by individuals or group. That is called ethics. So real ethics क्या है? We need to know which system are valuable in a progressive society and which are not. Those which are valuable should be promoted. Valuable system चाहिए। Valuable मतलब एक सही प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या है? जहां वो अन्यों को एक्सप्लॉइट करने से रोके। That discourages its members from exploiting others. अभी हमारा समाज हो गया है, हर व्यक्ति एक्सप्लॉइट करना चाहता है। We just want to exploit others so that I become successful. That is not a progressive society. Progressive society is we should stop. And for that, we need to develop some values. कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए हमारे अंदर? सबसे पहले वी शुड हैव बिलीव इन गॉड। ये एक स्पिरिचुअल लाइफ का बेसिस है, दैट बिलीव इन गॉड। हम लोग जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं, या कहना चाहिए सो कॉल्ड एडवांसमेंट है हमारी, तो उसमें क्या हो रहा है? हम भगवान को भूलते जा रहे हैं। वी हैव गिवन अप गॉड। When I refer to God, God means anyone in any religion. You may follow Islam, you may follow Christianity, you may follow Hinduism, that's okay. Wherever, whichever God you believe in, but you should believe in God. But in the modern ways, people take pride in telling that I don't trust in God, I don't believe in God. Even is like someone has a strong sense of moral values. People are giving very much emphasis on moral value. Still, unless he believes in God, his all activities, his all whatever morality he's showing will be defeated. So everyone will accept that faith in God produces a greater tendency to perform pious act than morality. We should have faith. भगवान में विश्वास नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। आज जो भी चल रहा है, वी आर हैप्पी डूइंग सिंफुल एक्टिविटीज। लोग उसको पाप मानते ही नहीं है।
तो जो चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? भगवान पर विश्वास। जब हमें भगवान पर विश्वास होता है तो हमें सही कार्य करने की भावना बढ़ती है। जब हमें भगवान पर विश्वास होता है तो हमारे अंदर करुणा और सहन शक्ति बढ़ती है। जब हमें भगवान पर विश्वास होता है तो हम निस्वार्थ भाव से कार्य करने का प्रयास करते हैं। जब हमें भगवान पर विश्वास होता है तो हम ये समझते हैं कि अच्छा कार्य करने से हम अच्छा जीवन जी सकेंगे। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वैल्यूज को अपने अंदर लाएं जिसके द्वारा हम रियल सक्सेस ला सकें। तो अभी तक हमने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उपयोग अगर सही ना हो तो फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें नुकसान पहुंचा सकता है। देन आई स्पोक अबाउट रियल सक्सेस कि रियल सक्सेस क्या है। रियल सक्सेस केवल कुछ अक्यूमुलेट करना नहीं है, वैल्यूज है। अ पर्सन इज नोन बाय वैल्यूज। आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ वैल्यूज हैं आपके अंदर। नहीं तो जानवर और आप में अगर कोई केवल खाने के लिए, पीने के लिए, भोग कर एंजॉय करने के लिए जी रहा है तो वो तो पशु भी जी रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो तेन हीना पशुभिः समानः। That what makes you special as humans? अगर आप सोचो आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना पीना सोना, यही सब चीजें तो एनिमल्स दे आर आल्सो डूइंग इट एंड मे बी दे आर डूइंग बेटर देन अस। एनिमल्स को कुछ रात को दवाई नहीं लेनी पड़ती नींद के लिए। वो बड़ी आराम से सो जाते हैं। So what is the difference? Difference is a life of values. That is the difference. और अगर वो नहीं है तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या रहेगा? If you are human, live by values. And what are those values? Now we will discuss that. We are about to finish because I was given 1 hour and we are almost 10 minutes away from that. So we started a little late, but I would like to end on time. So कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसको हम डेवलप करें और किस बेस पे? वो वैल्यूज मिलती कहाँ हैं? कौन डिसाइड करेगा कि ये वैल्यूज चाहिए? हम सोच सकते हैं ये वैल्यू है, कोई और सोचेगा ये नहीं। वी हैव स्क्रिप्चर्स विच आर कंसीडर्ड एज मैनुअल फॉर ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन के लिए मैनुअल चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए मैनुअल होती है, ऐसे मनुष्य जीवन जो डिसाइड करती है कि ये वैल्यूज आपको ये चीजें देंगी, और वो वर्क भी करता है। और उनमें भगवत गीता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर, और भगवत गीता भरा पड़ा है वैल्यूज से। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, भगवत गीता के 12वें अध्याय में, भगवत गीता के 13वें अध्याय में, 16वें अध्याय में भरा पड़ा है कि कहाँ कैसी वैल्यूज होनी चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी फ्यू विच विल बी हेल्पफुल टू यू in your studies, in your student life, and to make you a very good human. And then you will be achieving real success. Because real success achieve करने के लिए सबसे पहली क्वालिटी चाहिए माइंड कंट्रोल। If your mind is not controlled when you are facing reversals, मान लीजिए आप कुछ करने जा रहे हो और कुछ फेलियर्स आ गए, we are not able to handle failures. हम सक्सेस को तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अगर एग्जाम दे रहे हो, आपको 99%, 98% परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट इफ यू फेल? हाउ टू हैंडल दैट फेलियर? बिकॉज फेलियर लाइफ में समझा जाता है बेकार, एकदम फेल हो गया मतलब लड़का बर्बाद। तो हाउ टू हैंडल फेलियर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फेलियर्स को सक्सेस कैसे बनाना है ये भी हमें सीखना
सीखना चाहिए. Maybe next time, if your authorities allow, I would like to speak on this topic, failures as a stepping stone to success. Because many students are not able to handle failure. I know one girl, this I'm talking of 22 years ago, 22, 23 years ago. She was studying in 10th standard. And then, brilliant student she was. And then the results came. She was expecting not less than 95%. That perfect she was. And then she went. That was the time वो इंटरनेट पे दिखाई नहीं देता था, तब इंटरनेट वगैरह नहीं था, स्कूल जाना पड़ता था, स्कूल में नाम देखना, फिर कितने परसेंटेज आए. So she went to the school to see. और उसने देखा, अपने रिजल्ट्स देखे और उसको 65% आए. और वो 65% देखकर उसके मन का जो माइंड था वो बैलेंस लूज हो गया. बाय द टाइम शी केम बैक टू हर होम, घर आते आते वो पागल हो गई. और आपको ये बता रहे हैं कि वो आज भी, इवन टुडे, शी इज इन अ मेंटल असाइलम इन मिरज. महाराष्ट्र में एक स्थान है मिरज. शी इज स्टिल इन मेंटल असाइलम. हर महीने उसके पेरेंट्स जाते हैं आज भी. दिस इज गोइंग ऑन फॉर लास्ट 22 years. हर महीने जाते हैं, मिलकर आते. टिल टुडे शी इज. जस्ट इमेजिन, 65% is not bad. I mean, not that she failed, but because her expectations were 95 and she couldn't control her mind. So Bhagavad Gita teaches us the very first value for students is how to control your mind. So human values, if you live by, then that values will, this is the result I'm giving, that will give you the mind control. Your mind will always be under control. So for that, there are various things, of course, how to control the mind. But let us discuss what are the values we should live by. As we said, the right conduct. Our life, हमारा जो जीवन है, I'm sorry, मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोल. So हमारा जो जीवन है, वो बहुत right, हमारा conduct, हमारा behavior एकदम सही होना चाहिए. और वो कैसे होगा? जब तक हमें कोई मार्गदर्शन नहीं होगा. तो आपके जीवन में आपको एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है. मतलब ऐसा संग होना चाहिए जो आपको प्रमोट करे ह्यूमन वैल्यूज को फॉलो करने के. तो राइट कंडक्ट हमारा होना चाहिए. बिहेवियर हमारा ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि हमें अपने बिहेवियर पे शर्म नहीं आए. हम रात को अगर सोएं तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि आज मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया. हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए. सो व्हाट इज राइट कंडक्ट? राइट कंडक्ट मीन्स you should know how to behave with others. You should know how to keep yourself. This is also part of human value, right conduct. How to keep yourself clean and self-reliant. How to develop the modesty. So this is all part of, they call it self-help skills. ये सारा हमें पता होना चाहिए. साथ साथ we should develop courage, efficiency, punctuality. These are some of the things which are in the right conduct. You have a class, you should be punctual. 12 बजे का क्लास है तो 12 बजे पहुंचना चाहिए, 5 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए. स्कूल कॉलेज में डिसिप्लिन फॉर अ स्टूडेंट इज अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट. डिसिप्लिन नहीं है, ओबीडियंस नहीं है, तो किस तरह का स्टूडेंट है? तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी नोन बाय योर बिहेवियर. आपको लोग आपके आचरण से जानने चाहिए कि इतना अच्छा उसका बिहेवियर है, मुझे उसके साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है. मैनर्स होनी चाहिए. मैनर्स क्या हैं? जैसे हम लोग, हमें ध्यान, हम स्कूल, हम जो कॉलेज में थे तो टीचर्स के आने के बाद हम लोगों का बात करना पूरा बंद हो जाता था, पूरा ध्यान पढ़ाई पर. लेकिन आजकल हमने सुना है कि कॉलेजेस में ऐसे नहीं होता. आजकल लोग, वो टीचर बेचारे परेशान हो जाते हैं, चुप कराते कराते और बोलते रहते हैं. दिस इज नॉट गुड मैनर्स. आपको अगर कोई कुछ शिक्षा देने आया है
और अपना वो समय दे रहा है, अपना ज्ञान दे रहा है और एक शिक्षक है, तो उसको हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि भगवत गीता में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, आचार्य उपासना। आचार्य उपासना मीन्स द टीचर शुड बी वर्शिप बिकॉज ही इज गिविंग यू नॉलेज फॉर लाइफ। आपके जीवन के लिए आपको ज्ञान दे रहा है, कितना महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है। तो लेकिन ये हमारे मैनर्स नहीं है आजकल, तो हम सोचते हैं हम एडवांस हो गए हैं, हमें इनको पढ़ाना तो इनका काम है, ये इनका काम है। नहीं, काम नहीं है। दे आर गिविंग यू द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम दैम। टीचर से हम बुक से ज्यादा उनके अनुभव से सीखते हैं, इसीलिए हमारे अंदर ये मैनर्स होनी चाहिए और ये पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। ये कब आता है? जब हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो कर लेते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? आपको सरल भाषा में बताएं, संग अच्छा रखना, ऐसा संग रखना जिनको स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट है, ऐसे संग में रहना चाहिए। जैसे हम लोग प्रयास करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को, खास करके ग्रेटर नोएडा में, वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दैट। तो हम लोग जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा संग चाहते हैं, जो अच्छे वातावरण में रहना चाहते हैं, वी प्रोवाइड देम वन प्लेस, so they all stay together in one place, they study, they develop good values and they become good humans and they get success in their exam also. हमारे जो ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें से कई टॉपर्स होते हैं। तो क्यों? क्योंकि एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं और अच्छी मैनर्स, अच्छे बिहेवियर को सीखते हैं। तो हम लोग ये एज अ सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, वी वांट टू सर्व द स्टूडेंट कम्युनिटी। So we bring students together, ask them to stay at one place, we provide them spiritual values and then they excel. अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा वो करते हैं। The second quality one should have is peace. शांति तो मिलती ही नहीं, हम लोग कितनी सारी चीजें कर लेते हैं। शांति कब होती है? जब मन कंट्रोल हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तीन चीजें बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कंट्रोल। और इसको हम सीख सकते हैं भगवत गीता से। बहुत अच्छी वैल्यू सिखाती है भगवत गीता। तो माइंड कंट्रोल एक वैल्यू है जो रिजल्ट है वैल्यूज का, जो हम भगवत गीता से सीख सकते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने बताया तीन चीजें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ एस्टीम। ये तीन चीजें आपको कैसे आ सकती? सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है when you have a power within you. आपको विश्वास अंदर होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो वो विश्वास कब डेवलप होता है? जब हम ये जानते हैं कि इन स्पिरिचुअल लाइफ वी हैव समवन टू गाइड अस, वी हैव द राइट पाथ, हमारा सही मार्ग है, सही मार्गदर्शन करने वाले हैं और सही तरीका दिया गया है हमें। तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अब जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं उनके कॉन्फिडेंस के बहुत हाई लेवल होता है। हमारे आंदोलन में आपको बताएं 25-30 साल का लड़का भी 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट कर देता है। कॉन्फिडेंस चाहिए उसके लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने का। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। एक तरफ माइंड कंट्रोल है, दूसरी तरफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन बहुत मदद करता है हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। और फिर जब हम स्पिरिचुअल लाइफ के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं तो सेल्फ कंट्रोल आता है। और जब ये दो चीजें हैं हमारे पास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं और हमने अपने गलत आदतों को, बुरी आदतों को कंट्रोल किया हुआ है, तब फिर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब तब हमें अब ऐसा लगता है ये जो जीवन हम जी रहे हैं ये सही जीवन है, दिस इज वॉट वी वॉन्ट, दिस इज वॉट वी आर मेड अप फॉर, ये हमें तब पता चलता है। तो इसीलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है और ये आध्यात्मिक जीवन हमें सिखलाता है। और साथ ही साथ बहुत सी और ह्यूमन वैल्यूज हैं
जिनको हमें सीखना है। ये वैल्यूज जैसे डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। I'll just take 2-3 minutes more. I'm seeing the time. I'm going over time. So discipline in the student life is very important. Giving respect to teachers, and being disciplined in life will bring you the knowledge within you. आपको अगर ज्ञान चाहिए तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अगर आप किसी टीचर के पास जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए तो क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग, आपके अंदर बहुत अच्छी मैनर्स होनी चाहिए, तद विद्धि प्रणिपातेन। दूसरा, आपके अंदर इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, जानने की तीव्र इच्छा, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं ज्ञान लेना चाहता हूं, भगवान कहते हैं इसको भगवत गीता में। और तीसरा चीज ये भैया, एक प्रॉपर एटीट्यूड चाहिए। सो एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी है, उसका सही उपयोग हमें सीखना है, लेकिन सही उपयोग करने के लिए हमें ह्यूमन वैल्यूज को अपने अंदर लाना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, real success in life is not just to accumulate things. Real success is to have the value, to have the confidence, to have the control, and to have the self-esteem and live by those values. That is the real success of human life. So I request all of you conclude my session that what I have spoken, हमने जो कहा है वो बहुत थोड़ा है, बहुत ब्रीफ में है, लेकिन आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप इसमें से कुछ एक दो वैल्यूज को भी लेकर उसको और आगे डेवलप करना चाहें और स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छी तरह से पालन करना चाहें। तो वी हैव, आज जो अभी कहा गया है, जनरली हम लोग जब एक लेक्चर देते हैं तो एक छोटा सा क्विज बना देते हैं 4-5 क्वेश्चंस का, एंड ये देखने के लिए कि आपको कैसे आपको अच्छा लगा। मे बी वी आर शेयरिंग दैट लिंक विद यू, यू कैन ट्राई आंसरिंग दोज क्वेश्चंस सो दैट वी कैन गिव सम गिफ्ट्स टू द विनर्स। तो स्मॉल क्विज आपके लिए भेजी गई है, यू कैन द चैट बॉक्स, यू कैन सी द लिंक। But I'm really thankful to the management of IIMT and all the professors who arranged this seminar, and I hope that in future I'll be able to serve you again. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. I don't know whether we have time for question answers or no, because it is 1 o'clock. I was stop it. Thank you, Guruji, for Sir, enlightening us, our student, on the values and ethics, how they can inculcate the values to improve their good life. Now I request to Deputy Director Dr. Sanjay Pachauri to present the vote of thanks. Over to Pachauri sir. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, बस 1 मिनट का वक्त मैं अतिरिक्त लूंगा और आपकी आज्ञा चाहूँगा 2-3 चीज़ों को बताने के लिए। मैंने आपका पूरा लेक्चर सुन रहा था, मैं जो मैंने समझा, मैं 2 बातें सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1 कि बिलीव इन गॉड की बात की आपने, ये शायद मैंने इसको इस तरह समझा जिस तरह से हम अपने माता पिता पर बिलीव करते हैं और बात करते हैं कि यस, अगर पेरेंट्स का हाथ हमारे सर पर है, हम कुछ भी करेंगे, ही इज बिहाइंड अस हु कैन टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। Similarly, if you are believing in the God, they will take care of us, and they will not force us, or they will not force us to go on a very wrong direction. They will give us the very right direction. दूसरी बात आपने बहुत अच्छी जो बताई, जो मुझे बहुत अच्छी समझ में आई, कि it's up to us कि how we are going to use the technology. Whenever you have given the example of the knife, a knife is in the hand of murderer or a knife in the hand of doctor. Definitely, this is the same thing you have quoted in your next line, कि whatsoever the matter is available over the internet, we have not to believe 100% matter is right. बिल्कुल सही बात है गुरुजी,
क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं और कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो भी मैटर नेट पर गूगलिंग करके देखा जाता है, अप्रोक्सीमेटली 70% मैटर इज नॉट वर्थवाइल। कॉपी पेस्टेड या अनऑथराइज सोर्सेज का मैटर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को शायद इस चीज के लिए थोड़ा सा वक्त समझने में लगेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपने बहुत बिजी शेड्यूल से, इतने व्यस्त कार्यक्रम में से 1 घंटा हमारे इन बच्चों के लिए दिया, जो हकीकत में बहुत ही प्रेरणादायक था। और अगर इस चीज पर अमल किया जाता है, आपकी बातों पर और इस तरह की चीजों पर अगर आप इसका 25% भी बच्चों के दिमाग में, जहन में अगर उतर गया होगा, तो शायद ह्यूमन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द मेजर रोल behind the adopting of the human values and how they can grow if they adopt the same, वो बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाएगी। और वो बहुत अच्छे से शायद एक अच्छा इंसान, जिसे आपने बताया कि टू कॉल देमसेल्फ एज अ ह्यूमन, वो शायद उस चीज को फॉलो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर एपी सिंह का, जिन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर डॉक्टर गौरव सिन्हा जी का, और उन लोगों का भी जो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देते, हमेशा पर्दों के पीछे होते हैं, लाइक हमारी टेक्निकल टीम और इस तरह के जो लोग हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम एंड द टेक्निकल टीम, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा अपना पूरा प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए। धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So before ending this, I request all the attendees kindly on your camera so that we can take the screen print for future record. All attendees kindly. Within a minute, students kindly switch on your camera, please. Okay, thank you. Now we can end up this meeting. Thank you, Guruji. Once again, I thank you. Thank you. Thank you very धन्यवाद। much.